Hello students, so in this video I'll start with normal distributions. Now you can expect one short question from normal distribution in your examinations. So we'll do it from the basics. I'll teach you how to read the table and we'll have few examples also, and I'll be covering more sums in the upcoming videos also. Okay, so let us quickly see what is it. So normal distribution is used for continuous random variables, and x is a random variable, x is a normal variate and it is denoted by n mu comma sigma. Mu mean होगा और sigma मतलब standard deviation. Okay, and its PDF is given by this formula. So I have already written the formula here just to save some time. ये फॉर्मूला नहीं भी बाय हार्ट करोगे ना तो भी अपने प्रॉब्लम्स में अपना काम हो जाएगा. ओके, बिकॉज ये यूज़ नहीं होगा. सो एफ एक्स इज 1/sigma रूट ऑफ 2 pi e raised to -12 x minus mu upon sigma का स्क्वायर. ओके, एंड रेंज लिखा है मैंने बाजू में. देन वी हैव एंड या नॉर्मल distribution का curve is a bell shaped curve which I have drawn there. Okay, x equal to mu. Mu is nothing but the mean and it's from -infinity to infinity. Now what happens is we convert normal variate into a standard normal variate. तो उसको मैंने SNV लिखा है. Okay, तो SNV Z is a standard normal variate where Z is nothing but x minus mu upon sigma. Okay, और standard normal variate के लिए mu 0 और सिग्मा 1. ठीक है, तो बेसिकली वील बी यूजिंग दिस कर्व. जो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होगा ना, दैट वुड बी यूजिंग दिस z इक्वल टू 0. सो यहाँ पे 0.5 इस कर्व का एरिया, लेफ्ट हाफ इज 0.5 and right half is also 0.5. Okay, so total area is 1. So left half and right half is 0.5. Okay, so now let us quickly see how to solve the sums and see how to read the table. Okay. Okay, so I have loaded the table and that is there in front of you. So this is the table and there's one problem that we are going to solve. तो ये problem purely tables use करके करना है. So this problem I'm just taking just for you all to understand how to use the table, and then I'll just give you a few more examples to make your table part stronger. Okay, so let us quickly do this. Solution. See, for a normal variate x with mean 500 and standard deviation 100, तो mean दिया है 500 और standard deviation 100 दिया है. Find the probabilities p of x less than 620, p of x less than 380 and so on. So p of x less than 620. अच्छा, now see, normal curve is a bell shaped curve. तो टेबल में जो भी वैल्यू दिया होगा ना, दैट इज फ्रॉम z इक्वल टू 0 अप टू दैट पॉइंट. ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. सी, तुम लोग क्या करो, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, बिकॉज इफ यू सी दिस टेबल, यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके मैक्स 3 तक पता है अपने को वैल्यूज. ओके, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो x को डायरेक्टली z लिखना है, लेस देन 620 माइनस म्यू. तो म्यू कितना है, 500 अपॉन सिग्मा. सिग्मा इज नथिंग बट 100. तो देयरफॉर वी गेट z इज लेस देन 1.2. ठीक है. Now what I am trying to say is, see, z less than 1.2 ना, तो I'll draw it here. ये z equal to 0. z equal to 1.2 कहाँ पे होगा, राइट में होगा या लेफ्ट में? ऑब्वियसली z equal to 0 के राइट में होगा. तो मैंने एक लाइन बनाया z equal to 1.2.
ठीक है. सो व्हेन यू रीड दिस इनइक्वालिटी z लेस देन 1.2, तो z लेस देन 1.2 मतलब 1.2 के लेफ्ट साइड का सब कुछ. तो आई एम जस्ट शेडिंग दिस, highlighting the area. ओके. अब टेबल में तो कैसा है, ज़ीरो से लेके ज़ीरो के आगे तक का वैल्यू दिया है. कर्व ज़ीरो से पहले का दिया ही नहीं वैल्यूज़, बिकॉज इट इज़ सिमेट्रिक. ओके, द कर्व इज सिमेट्रिक, तो ऑब्वियसली वाई वुड दे गिव अस द वैल्यू फ्रॉम, वाई वुड दे गिव अस द वैल्यू ऑन द नेगेटिव साइड. ओके, इसलिए दिया नहीं है, बिकॉज एक साइड का दिया है तो वी कैन ईजिली स्टिल फाइंड द एरियाज. ओके, नाउ आई हैड जस्ट फ्यू मोमेंट्स बैक टोल्ड कि ये एरिया 0.5 होता है और राइट साइड का भी पूरा एरिया 0.5 होता है. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, नाउ अंडरस्टैंड. सी, इतना एरिया अपने को पता है, इतना एरिया कितना है, 0.5. तो व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड z लेस देन 1.2, आई नो दैट 0.5 तो ऐड करना है मुझे, बिकॉज z लेस देन 1.2 मतलब पूरा उसका लेफ्ट साइड. तो माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी -3 से लेके z इक्वल टू 0 इज गिविंग मी 0.5. ओके, प्लस अब कितना करना है एरिया, अब ये तो अभी भी ऐड करना है इतना पार्ट, ग्रीन पार्ट. सो ग्रीन पार्ट के लिए आई राइट दिस एज z इज फ्रॉम 0 to 1.2. ओके, z 0 से लेके 1.2. अगर तुम लोग सिर्फ ऐसा भी लिखते हैं ना, z लेस देन 1.2, ओके, बट ऐसा बताना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू से z लेस देन 1.2 तो ऑब्वियसली 0.5 प्लस समथिंग होगा. ओके, एंड दैट समथिंग इज फ्रॉम 0 अप टू 1.2. तो दैट ग्रीन एरिया नाउ यू हैव टू फाइंड with the help of the table. See, 1.2 है. Okay, so you have to look for 1.2 on the left side, left column. 1.2, तो I find it here. ये रहा 1.2. ओके, 1.24 नहीं है, 1.2 है, एग्जैक्ट 1.2. तो दिस इज द वैल्यू, बिकॉज 1.2 और उसके आगे नेक्स्ट डेसिमल 0 है, ऑब्वियसली कुछ नहीं है. तो सो द वैल्यू इज 0.3849. सो 0.5 प्लस 0.3849, सो 0.8849. ओके, बस दैट्स इट. दिस इज योर फाइनल आंसर. लेट अस टेक द नेक्स्ट सम. अब लेस देन 380 बोला है. See, this part has to be very strong, the table identification part, the region identification part, because ये तुम्हारा strong हो गया ना, तो sums में you will be able to analyze very fast. Okay, p of x less than 380. So p of x के जगह पे सीधा z 380 minus 500 upon 100. So z less than minus 1.2. Minus 120 upon 100 is minus 1.2. Yes. So I'll draw the region here. ये z इक्वल टू 0. अब z -1.2 लेफ्ट पे आएगा 0 के या राइट साइड पे? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे. सो ये मैंने एक लाइन बनाया z इक्वल टू -1.2 का. ओके, नाउ z लेस देन -1.2. सो -1.2 के लेफ्ट साइड का रीजन या राइट साइड का? z लेस देन -1.2 है, सो यू आर ऑन द लेफ्ट. ओके, सो z इक्वल टू -1.2 का लेफ्ट. सो आई एम हाईलाइटिंग दैट रीजन. ओके, तो ये हाईलाइट कर दिया मैंने. तो अब तुमको कौन सा एरिया चाहिए? वो जो शेडेड पोर्शन है ना, वो चाहिए. नाउ हाउ डू वी फाइंड दैट? सी, this entire region
इसका एरिया कितना है 0.5. ओके, 0.5 में से अगर मैं ये येलो स्ट्रिप निकाल देता हूँ 0.5 में से, इफ आई रिमूव दैट येलो स्ट्रिप आई विल गेट द ब्लू शेडेड पोर्शन. ओके, 0.5 टोटल एरिया जो लेफ्ट साइड का है उसमें से अगर मैं येलो स्ट्रिप निकाल दूँ तो मुझे मेरा शेडेड पोर्शन मिल जाएगा. ओके, तो बस वही करना है. तो इसको लिखोगे कैसे? 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी z between -1.2 to 0. बट देर इज़ अ प्रॉब्लम. ओके, क्या प्रॉब्लम है? हाउ डू आई आइडेंटिफाई दिस एरिया? मतलब अब ये जो येलो पोर्शन है ये एरिया में ढूंढूं कैसे? बिकॉज टेबल में तो जो भी वैल्यूज दिया है वो पॉजिटिव साइड पे दिया है. बट देन आई हैड टोल्ड दैट द रीजन इज सिमेट्रिक, z इक्वल टू 0 के अबाउट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज सिमेट्रिक. ओके, so if you want to find this yellow portion it is same as z equal to 0 से लेके z equal to 0 से लेके 1.2. ओके, ये और ये पोर्शन सेम होगा जो ऊपर फाइंड किया था ना ग्रीन पोर्शन, ये ठीक है. बिकॉज सिमेट्रिक है ना, तो लेफ्ट साइड पे जितना z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -1.2 के बीच का एरिया है वही इतना होगा यहाँ पे. ऑब्वियस है, व्हेन आई एम टेलिंग दैट दे आर सिमेट्रिक तो यही होगा. तो ये एरिया और येलो एरिया सेम है. जो ग्रीन से हाईलाइट किया है और जो येलो से हाईलाइट किया है दैट इज सेम. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट. इसका वैल्यू कितना है? 0.3849. okay, and whatever is the final answer that you can calculate and write. Okay, so let us move on to the next part, sub part. X greater than 650 and x greater than 350. Okay, x greater than 650. x greater than 650 मतलब z greater than 650 minus 500 upon 100. तो z greater than 1.5. चलो ये भी बनाते हैं. So z equal to 0 and I am drawing a line z equal to 1.5. Obviously 0 के राइट पे होगा वो, तो 1.5 बना दिया. ओके, अब क्या? अब ग्रेटर देन 1.5 बोला है तो 1.5 का राइट आएगा या लेफ्ट? z शुड बी ग्रेटर देन 1.5, तो ऑब्वियसली 1.5 का राइट. सो दैट मीन्स दे आर आस्किंग अस दिस एरिया, ये जो ब्लू में शेड किया है मैंने. ओके, ब्लू में हाईलाइट किया है. ठीक है, तो अब फिर से क्या लॉजिक लगेगा? सी, टेबल में जो भी वैल्यूज दिया है दैट इज फ्रॉम 0 अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो इफ यू आर लुकिंग अंडर 1.5, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट z इक्वल टू 1.5 के नीचे देखता है यहाँ पे और बोलता है कि आंसर 4332 है, तो व्हाट आंसर ही इज टेलिंग अस दिस रीजन. वो तो सिर्फ इतना एरिया बोल रहा है, बट अपने को ये एरिया में इंटरेस्ट नहीं है, अपने को उसके बाजू वाले एरिया में इंटरेस्ट है. ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट. गेटिंग इट? सो टेबल में जो भी वैल्यूज देखोगे ना दैट इज 0 अप टू दैट पॉइंट. ओके, रिमेंबर दिस, 0 अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. सो अगेन व्हाट लॉजिक यूल अप्लाई? ये पूरा मुझे पता है कितना है, 0.5. ओके, दिस एंटायर रीजन, राइट साइड का रीजन इज 0.5. उसमें से अगर मैं ये येलो पार्ट निकाल दूँ, येलो पार्ट माइनस कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा. ओके, सो 0.5 में से मुझे येलो पार्ट निकालना है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1.5.
और 0 से लेके 1.5 का वैल्यू अभी अभी देखा था, आई थिंक 0.4332. आई जस्ट स्क्रॉल अप. 0.4332 आया था, ये देखो. गेटिंग दिस. लेफ्ट कॉलम में 1.5 देखा एंड वी आर गेटिंग दिस. So this is equal to whatever answer you'll get. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है, P of x greater than 350. So P of z 350 minus 500 upon 100. Z greater than minus 1.5. ठीक है. Z greater than minus 1.5 क्या होता है, ये पूरा ना. Greater than minus 1.5 means you are on the right hand side of minus 1.5, because greater than बोला है, तो greater than मतलब राइट साइड का पूरा रीजन. ओके, तो अब ये कैसे फाइंड करोगे, इतना पार्ट तो मुझे पता है 0.5. अब 0.5 में कुछ ऐड करना है अपने को. ओके, सब्ट्रैक्ट नहीं करना. तो हाउ मच पोर्शन वी हैव टू ऐड, दिस मच पोर्शन, द येलो पोर्शन. ओके, और येलो पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, z इक्वल टू 0 से लेके minus 1.5 तक है. सो हाउ डू आई राइट दिस, 0.5 प्लस p ऑफ, see this I am purposely writing the whole thing because abhi we have just started the topic. In the problems I'll be directly writing 0.5 plus whatever is the value. Okay, and this is as good as writing the region from 0 से 1.5. Okay, so 0.5 से 433, sorry 43, what was the value, yeah 4332. तो ये देख लेना जितना आता है. Okay, that would be your final answer. I hope you all are understanding the region का part. My focus is solely on the regions and not on the calculations. Okay. अब नेक्स्ट क्या पूछा है, 500 से लेके 634. 500 से लेके 634. ओके, x is between 500 and 634. So this is nothing but p of 500 minus 500 z इक्वल टू 0. ये लाइन बना दिया मैंने. अब ये 0 से लेके 134/100 इज 1.34. ओके, सो 1.34 एक लाइन बनाया. ओके, z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 1.34, वो उतना ही एरिया चाहिए अपने को. तो अब टेबल में क्या देखना, अब इसमें 0.5 प्लस या 0.5 माइनस कुछ नहीं करना है, बिकॉज इफ अंडर द टेबल आई लुक अंडर, if in the table I look under 1.34, I'll directly get this shaded portion. Okay, so 1.34, तो क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे 1.3 पकड़ो, तो ये रहा 1.3, और फिर 0.4 दिस. सो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे. सो 0.4099. ओके,
0.4099 हो गया ये. Getting this? Sixth probability I think 364 से लेके नहीं 366 से लेके 500 and this was x. So this is nothing but ये आ गया z इक्वल टू -1.34. तो फिर से कौन सा रीजन चाहिए? ये वाला. तो इजी है ये, अभी भी ऊपर फाइंड किया था. z इक्वल टू 0 से लेके 1.34 का जो एरिया है यही सेम एरिया यहाँ पे आएगा. सो दैट्स प्रिटी इजी. कितना आया था? 0.4099. आई एम राइटिंग द आंसर फ्रॉम हियर ओनली. ओके. अब 7th पार्ट. 380 से 650. 380 से 650. 380 से 650. So this is 380 minus 500 upon 100, 650. तो ये आएगा -1.2 और ये आएगा 1.5. ओके. तो अब ये सोचते हैं. z इक्वल टू 0 -1.2 से लेके 1.5. okay, so that means you have to add this region and this region. okay, ब्लू और ग्रीन दोनों ऐड करना है. तो कैसे करें? उसको ब्रेक करके लिखता हूँ मैं. सी अल्टीमेटली यू नो व्हाट यू हैव टू डू. एक तो 0 से लेके 1.5 मतलब 1.5 के नीचे देखोगे 4332 आ जाएगा. एंड 0 से लेके 1.2 तक का एरिया दैट विल गिव यू दिस. नेगेटिव साइड वाला रीजन दे देगा. ओके. अब सी नेगेटिव z का वैल्यू है तो ऐसा नहीं कि एरिया नेगेटिव आएगा. डोंट बी अंडर दैट इम्प्रेशन. ये जो येलो में शेड किया दिस इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड द एरिया. ओके. सो इसको ब्रेक करके ऐसा लिखते हैं अभी. And then this area is as good as this area 1.2. अब 1.2 का एरिया देखते हैं. 1.2 is this 3849. और 1.5 तो since we had used just previously, I think I remember this. So 4332. Now you can add and see whatever is the answer. That would be your final answer. Okay. Now just to
give you all more confidence. I want you all to solve these few problems on your own. Probability of, I'll just write this, z less than मैंने डायरेक्ट z के फॉर्म में लिखा है. आई एम नॉट राइटिंग, आई डोंट वांट टू गिव यू ऑल मीन एंड ऑल बिकॉज my purpose for on giving these problem is just to check whether you all are sure with the table or not. So you can try them. You can pause the video, you can note them and you can try in your books. मैं तो ऐसे randomly values लिख रहा हूँ. Okay, so you can pause the video and you can write your answers. I am not calculating the answers, I am just drawing the region part. You can cross check your region. Okay, so when I am telling that z is less than 2.37, तो ये क्या आएगा, z less than 2.37. तो अगर ये z इक्वल टू 0 है, 2.37 यहाँ पे आएगा. लेस देन मीन्स दिस एंटायर पोर्शन. ओके, सो इसका आंसर होगा 0.5 बिकॉज विल बी एडिंग दिस प्लस दिस येलो रीजन. ओके, तो येलो रीजन कितना आएगा, 0 से लेके 2.37. तो 2.37 के नीचे का एरिया देखना है अपने को. तो टेबल में यू हैव टू सर्च फॉर 2.37. सो आई विल शो यू वंस मोर. तो क्या करोगे, z के नीचे ढूंढो. 2.37 तो नहीं मिलेगा, 2.3 मिलेगा. 2.3 कहाँ पे है, यहाँ पे है. ओके, अब सेकेंड डेसिमल चाहिए मुझे, 37. सो आई लुक योर. ओके, तो 7 कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला. ओके, तो दोनों का इंटरसेक्शन 2.3 एंड 0.7. So yes, this is the intersection, 0.4911. 0.4911. तो आई होप टेबल देखना तो समझ गया होगा. 0.4991 आई गेस. ओके, अब ये देखते हैं. z लेस देन -1.58. -1.58 लेस देन -1.58 मतलब ये पार्ट. तो ये कैसे फाइंड करोगे, 0.5 माइनस. ओके, मैंने इनइक्वालिटी गलत लिखा है. -1.58 and which can be written as like this. Now again 1 point, this I am not finding how to do. My intent is just to tell you all the right region so that you can cross check. 1.58 का वैल्यू देखना आता होगा तो you can do it by yourself. Okay, or wait, I'll quickly find for you all.
1.58, तो 1.5 and then 8, 4429, 4429, 4429, और ये भी 4911 था. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, z greater than 1.88. So that means this part. ये कैसे निकालोगे? 0.5 माइनस दिस रीजन, येलो रीजन. ओके, 0.5 में से उतना येलो निकाल दो तो ब्लू मिल जाएगा. ओके, तो 1.88 अगेन, दैट इज 1.8, और ये होगा शायद 4699, या ओके 4699. Now z greater than minus 1.34. तो minus 1.34 is here. Greater than मतलब ये वाला रीजन. So 0.5 plus minus 1.34 से लेके 0, which is nothing but 0 से लेके 1.34. अब ये कैलकुलेट कर लेना. You can see the table and you can do it. ये बहुत अच्छा सम है. Z equal to 0, 1.66, 2.87. ठीक है, so what to do? अब ये कैसे फाइंड करोगे? ये सिनेरियो फर्स्ट टाइम आया है अपने पास. ओके, आई थिंक दिस वी डिडंट फेस प्रीवियसली. सो हाउ टू टैकल दिस? सी, थोड़ा लॉजिक लगाना. व्हेन यू आर लुकिंग इन द टेबल फॉर 2.87, तो क्या मिलेगा? 0 से लेके 2.87 मिलेगा. सो सपोज आई राइट लाइक दिस. ओके, तो मैंने क्या किया ना, मैंने येलो से शेड कर लिया. तो 2.87 करोगे तो पूरा येलो का पार्ट मिलेगा. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट. उसमें वो ओनली येलो वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया. तो उसको मैंने क्या किया, मैंने रेड से शेड कर दिया. ये रेड वाला पार्ट अनवांटेड पार्ट है मेरे एरिया में, तो रेड वाला पार्ट निकालना है. ओके, तो माइनस 0 से लेके 1.66. ओके, तो 2.87 माइनस 1.66 का एरिया विल गिव यू द शेडेड पोर्शन. जो मैंने स्लांट में शेड किया ना, वो मिल जाएगा. ओके, तो बहुत इजी है. 2.87 ना, 2.87 एंड 1.66, 2.87. सो 2.8 यहाँ पे है, और 7 इज आई गेस फॉर दिस 0.4979, और 1.66 4505, नहीं, 1.66 is 4415. Okay, so 4979 and 4415. 4979 4415. ठीक है, तो आई होप क्लियर है थोड़ा बहुत. मतलब अगर क्लियर नहीं है तो वॉच द वीडियो वंस मोर. आई एम श्योर यूल अंडरस्टैंड.
z equal to 0, z equal to 1.58. तो कौन सा रीजन चाहिए? ये वाला, दिस प्लस दिस। तो क्या करोगे, 2.16 का प्रोबेबिलिटी एंड 1.58 का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, फाइनली। थोड़ा और लेफ्ट में बनाते हैं, -2.67 एंड -0.68। ओके, तो ये ढूंढना है अपने को। तो ये फिर से ये सेकंड लास्ट वाला केस है, जब दोनों एक साइड पे आ गया था। ओके, तो क्या किया था, सी दिस एंटायर येलो रीजन, और ये तो z इक्वल टू 0 वाला लाइन है। ओके, और ये -0.68। सो दिस एंटायर येलो रीजन माइनस द रेड रीजन। ओके, तो एंटायर येलो रीजन कितना है, एंटायर येलो रीजन इज दिस। ओके, उसमें से ये रेड वाला स्ट्रिप माइनस करना है, वो ये वाला है। तो इसको ऐसा लिख देते हैं अब, ठीक है, बस हो गया। Probabilities I hope you can find, so that part I'm not doing. So yes, that's it from my side in this video. Already it has become too long, so but that is fine. I hope you have understood the tabular part very clearly. So and now you are good to go for the word problems. Okay, so I'll be coming up with my word problems in the next video. So till then, stay tuned, goodbye and thank you, and please do not forget to like the channel, subscribe कीजिए so that you keep on receiving the notifications, and share it on a college WhatsApp group so that even others can study from here. Okay, so thank you and goodbye.